हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग वन एंड ऑल। कैसे हो? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। ओके, पहले लेक्चर में हमने देखा कि व्हाट इज द यूनिट, व्हाट इज द एसआई यूनिट, डिफरेंट सिस्टम ऑफ यूनिट्स हमने देखे। उसमें 4 टाइप्स ऑफ यूनिट्स वी आर स्टडीड। फर्स्ट वन वाज एफपीएस, फुट पाउंड सेकेंड। सेकेंड सीजीएस, सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड। थर्ड एमकेएस, मीटर किलोग्राम सेकेंड। एंड लास्ट that was the SI system. Okay, so actually SI system is the super set of the MK system. MK को हमने अभी डिस्कस कर दिया, राइट। अभी सिर्फ CGS और SI सिस्टम दोनों सिस्टम ही यूज होते हैं, राइट। अगला जो टॉपिक है जो हम देखने वाले हैं दैट इज द क्वांटिटीज, फंडामेंटल क्वांटिटी। ओके, चलो लेट्स बिगिन विद द फंडामेंटल क्वांटिटी। So let's see first physical quantity क्या होता है। Physical quantity, see student, physical quantity is the quantity which can be used by using or which can be measured, expressed by using the laws of physics. That quantity called as physical quantity. Okay. For example, I have some example. Okay, let's have the mass, time, currency, then volume, length, density, right? So out of this, which can be stated as physical quantity? Mass, which can measure in kilogram. Time, second. Currency, different countries having different currency. But does the currency is a physical quantity? You might be wondering, yes, it is physical quantity, but not. In the language of physics, this is not a physical quantity. Even though we can measure it, currency can be measured, 20 rupees, 30 rupees, 50 rupees, 100 rupees, like that. When we count the number of notes, different notes, right, we can measure it, right, but we cannot use the laws of physics for this currency. इसमें physics के law use नहीं होती, and that's why the currency is not the physical quantity. Volume, length and density are measured by using laws of physics. So I hope you all have got the idea about the physical quantity. Chalo, let's write the definition of physical quantity. Physical quantity is the quantity which can be measured, quantities which can be measured, express, okay, by using laws of physics. This is very important. जैसे first law, second law, third law जो भी है, what are the different laws are there in physics, right? So वो लॉ यूज करके जो हम क्वांटिटी को मेजर कर सकते हैं बाय यूजिंग इंस्ट्रूमेंट, ओके। जैसे कि मीटर्स के लिया, मीटर से हम वी कैन मेजर द लेंथ ऑफ द दिस व्हाइट बोर्ड, वी कैन मेजर द हाइट ऑफ द व्हाइट बोर्ड एंड लेंथ इनटू ब्रेथ, सो दैट इज एरिया, सो दैट इज द फिजिकल क्वांटिटी। ओके, नाउ लेट्स सी व्हाट आर द टाइप्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी। अभी इसमें फिजिकल क्वांटिटी में द क्वांटिटी विच कैनॉट डिराइव फ्रॉम एनी अदर फिजिकल क्वांटिटी. So there are 2 type of quantities, fundamental and derived quantities. Types of physical quantity. So 2 types are there. One is fundamental,
It is also called as basic quantity. Basic quantity. And second one is stated as derived quantity. Derived quantities. Fundamental quantity, I told you that are those quantity which cannot be formulated or which is not depend on any other physical quantity, which has its own independence. Okay, so this quantity, the quantity, physical quantity which does not depend on any other quantity for its expression or measurement. It is called as fundamental or basic. Okay, अगर इसका एग्जाम्पल दिया जाए तो there are 7 fundamental quantities. How many quantities are there? 7 fundamental quantities. Okay, for example, length, mass, time. These are very basic fundamental quantities. Okay, then electric current, then temperature, thermodynamic temperature, amount of substance. How many are there? 6. One more is there. Luminous intensity. So, student, these are the 7 fundamental or basic quantity: length, mass, time, electric current, temperature, thermodynamic temperature, amount of substance, luminous intensity. These are the, क्योंकि length cannot be split, cannot be divided, उसका कुछ ब्रेकअप नहीं कर सकते, mass का भी कुछ ब्रेकअप नहीं कर सकते. Mass has its own existence. Mass cannot be derived from any other physical quantity. Understand? Similarly, electric current, right? You will be wondering, electric current I, what is I? I is the rate of flow of charge, Q by T. But actually, electric current is the fundamental quantity, but not a charge. Charge is not fundamental quantity. This current has come from charge. Q is equal to I into T. Okay, जो साइंटिस्ट लोगों ने डिसाइड किया है अर्लियर कि चार्ज इज नॉट अ फंडामेंटल क्वांटिटी, बट द इलेक्ट्रिक करंट इज द फंडामेंटल क्वांटिटी. द रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज अपॉन टाइम, चार्ज अपॉन टाइम इज द इलेक्ट्रिक करंट. ओके, सो आपको ये समझना है. So the second quantity is derived quantity. Derived, the word itself indicate that the quantity which has no independent existence. उसका कोई ऐसा स्वतंत्र अस्तित्व नहीं होता है. Which depend on 2 or more physical quantity. The quantity which can be derived from 2 or more fundamental physical quantity. फॉर एग्जाम्पल अगर देना है, अगर मैंने लिया एरिया, बराबर, तो एरिया का फॉर्मूला क्या बनेगा बच्चों? लेंथ इंटू ब्रेथ. अगर वॉल्यूम लिया, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट. अगर डेंसिटी लिया, रो डेंसिटी इज मास अपॉन वॉल्यूम. तो 2 या 2 से ज्यादा फंडामेंटल क्वांटिटी या डिराइव्ड क्वांटिटी मिलके जो क्वांटिटी बनेगी उसको हम क्या बोलेंगे? डिराइव्ड क्वांटिटी. इट कैन बी डिराइव्ड. ओके, सो क्वांटिटी
which can be derived from two or more fundamental or basic quantity. Or which depends on any other fundamental physical quantity. इसको दूसरा लैंग्वेज में हम डिफाइन कर सकते हैं. Derived quantity is that quantity which can depend on two or more fundamental physical quantity. That quantity is called as derived quantity. उसके हमने दो तीन एग्जांपल एरिया, वॉल्यूम एंड डेंसिटी. ओके, चलो और एग्जांपल लेते थोड़े बहुत दूसरे. जैसे कि फोर्स इज इक्वल टू मास इनटू एक्सेलरेशन. Force is also derived quantity. Then velocity is displacement upon time. Speed is distance upon time. और क्या ले सकते हैं? We can take the any other quantity. Acceleration ले सकते हैं, pressure ले सकते हैं. Acceleration. Okay. Acceleration is velocity upon time, pressure, force upon area. There are so many derived quantity. लेकिन हमारे सिलेबस में 7th फाउंडेशन के बेस में ज़्यादा हमको डीप में जाने की जरूरत नहीं. बहुत सारे क्वांटिटीज है, राइट. इलेक्ट्रिक पोटेंशियल है, चार्ज है, राइट. फिर आपका प्रेशर है, वर्क है, टॉर्क है, सो मेनी क्वांटिटीज आर. ओके, तो इतना लिख लो, देन वी विल डू द नेक्स्ट. ओके, नाउ लेट्स begin with the units of fundamental quantity and derived quantity. ओके, तो हमने यूनिट्स का डेफिनेशन क्या यूज किया था, क्या था प्रीवियस लेक्चर में. यूनिट्स इज द स्टैंडर्ड यूज फॉर मेजरमेंट ऑफ फिजिकल क्वांटिटी. लेट अस डिफाइन व्हाट इज द यूनिट. सो यूनिट इज standard used for measurement of any physical quantity. जैसे कि फॉर एग्जाम्पल, if I want to measure the length of this marker, the length of this marker is 10.5 centimeter. Okay, so length of marker is 10.5 centimeter. So here centimeter is the unit. It is CGS unit. कौन सा unit है? CGS. Whereas 10.5 is the magnitude value, or value. Okay, so measurement of physical quantity, is equal to the magnitude multiplied by, or magnitude can say the numeric value into unit. Means when we say 5 kg sugar, so amount of sugar, the mass of sugar is 5 times that of the kilogram.
मतलब मल्टीपल ऑफ it, 5 times that of the kilogram. That's why it is 5 kg sugar. You can say. Okay. So let's have the different units. The unit used for measurement of fundamental quantity are called as fundamental units or basic units. The units used for measurement of derived quantities are called as derived units. Okay. तो पहले हम डेफिनेशन लिखेंगे फंडामेंटल यूनिट्स. फंडामेंटल यूनिट्स so fundamental units are those units used for measurement of fundamental quantities or basic quantities. They are called as fundamental units. हम लोग उसको देखने वाले बाद में. Then derived units. Derived units are those units which are used for measurement of derived quantities. The units which are used for measurement of derived physical quantity. ओके. चलो अभी देखते हैं फंडामेंटल यूनिट्स और बेसिक यूनिट्स. ओके. Fundamental units. Example of fundamental units. Now we know how many fundamental quantities are there? 7. The first fundamental quantity, length, which is measured in meter or abbreviated as small m. While writing the units of fundamental quantity, fundamental units, you have to take in SI system only, right? Larger unit. Second one is mass measured in kilogram. ओके. हमेशा याद रखना जब भी आप मीटर किलोग्राम लिखते हो तो स्मॉल लेटर से लिखना है, कैपिटल में नहीं लिखना है. उसका जो सिंबल है वो सिंबल भी स्मॉल ही लेना है, स्मॉल केजी स्मॉल एम. यहाँ पे कैपिटल एम नहीं लेना है, कैपिटल के नहीं लिखना है, क्योंकि रूल्स बना है, साइंटिस्ट लोगों ने रूल्स बना है, राइट, व्हाइल राइटिंग द यूनिट्स ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, राइट. सो इन द थर्ड वन इज टाइम. Time always measured in second, whether it is CGS or SI system. बराबर, क्योंकि अभी हम फिजिक्स में जो भी न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे only 2 system of units we are going to use. The one is CGS, second is SI system. We are not going to use FPS and MKS. Okay, ये आपको याद रखना. Then time measured in second. So second is the fundamental units. यहाँ पे भी S स्मॉल नहीं लेना है, कैपिटल S कभी भी लिखना नहीं है, कैपिटल KG कभी लिखना नहीं है, कैपिटल M कभी लिखना नहीं मीटर. ओके, आपको याद रखना. फोर्थ जो है, फोर्थ फंडामेंटल क्वांटिटी, दैट इज इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट विच इज मेजर्ड इन, एनीवन कैन टेल, कोई बता सकता है व्हाट इज द यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट? किसमें मेजर करते हैं जो इलेक्ट्रिक करंट जाता है हमारा? भाई कभी आपने कोई इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस देखा है, कभी बटन देखा है, कभी फ्रिज वॉशिंग मशीन पे
उसका स्पेसिफिकेशन लिखा रहता है। कभी आपने देखा है? नहीं देखा हो तो उसमें लिखा रहता है, करंट लिखा रहता है, वोल्टेज लिखा रहता है, कितना वोल्ट पे चलता है, कितना करंट रहता है। जो हमारे स्विच होते हैं, बटन्स होते हैं, उसको भी करंट रेटिंग होता है, राइट? उसमें लिखा रहता है करंट मेजरिंग एम्पियर। एम्पियर जो हमारा चार्जर होता है, चार्जर वो भी उस पे भी लिखा रहता है। फिफ्थ वन इज इलेक्ट्रिकल थर्मोडायनामिक टेम्परेचर। थर्मोडायनामिक और सिंपली टेम्परेचर लिखा तो भी चलेगा। थर्मोडायनामिक टेम्परेचर कौन बताएगा? टेम्परेचर इज अ वेरी बेसिक फिजिकल क्वांटिटी। अभी कोरोना पीरियड चल रहा है, पैंडेमिक चल रहा है, तो हर जगह पे वो टेम्परेचर मेजर करते हैं। थर्मो जो क्या होता है उसको, जो थर्मल सेंसिटिव मीटर जो होता है, राइट, से थर्मोमीटर से वो चेक करते हैं। तो वो जो रीडिंग आता है 36.7, 36.5, वो क्या होता है, राइट? तो यूजुअली that shows our body temperature, right? So that body temperature measured in Celsius, but the SI unit of temperature is neither Celsius or nor Kelvin, nor Fahrenheit. So Fahrenheit or Celsius are the convenient units, but the Kelvin is the SI unit for the temperature, which was discovered by the scientist Lord Kelvin. Okay, so Kelvin is the fundamental unit for temperature, not Celsius, not Fahrenheit. Remember, okay, Kelvin is the 0 Kelvin. 0 Kelvin is the smallest possible temperature. This is not okay. This is 0 Kelvin. Okay word नहीं है, 0 Kelvin. This is 0 Kelvin. This is the smallest possible temperature. Smallest possible temperature. Possible temperature. Kelvin is the smallest possible temperature, or which is can be taken as minus 273.15 डिग्री सेल्सियस। अभी नॉर्मल टेम्परेचर कितना होगा? सराउंडिंग टेम्परेचर 20 डिग्री सेल्सियस या 25 पकड़ लो। समर आ गया तो 25 प्लस टेम्परेचर है, 30 हो सकता है। तो 30 डिग्री सेल्सियस, फिर 25, 20 लाइक दैट, 0 डिग्री सेल्सियस, और 0 से नीचे लेस देन 0, माइनस 273 नीचे ना लोवेस्ट पॉसिबल टेम्परेचर हम मेजर कर सकते हैं। दैट इज द केस। Okay, then 6th one is amount of substance which is measured in mole. इसमें मेजर करते हैं मोल में मेजर, amount of mole, 1 mole of gas, 1 mole of substance, right? So that is the mole. And 7th quantity is luminous intensity. ये सब आपको इसमें ज्यादा डीप में जाने की जरूरत नहीं है, बिकॉज दिस इज द पार्ट ऑफ हायर क्लासेस। ओके, luminous intensity. तो luminous intensity का ऐसा यूनिट क्या है? फंडामेंटल यूनिट, दैट इज कैंडेला। वो भी साइंटिस्ट का नाम है CD। ओके, यहाँ पे क्या आएगा? MOL, मोल, राइट? तो यहाँ पे इसका जो यूनिट है सिंबल कैपिटल की, यहाँ पे कैपिटल क्या आएगा? क्योंकि कैपिटल के इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। केल्विन क्या है? नेम ऑफ साइंटिस्ट। तो जो भी यूनिट साइंटिस्ट के नाम पे दिया जाता है, उसका जो एब्रेशन है, जो सिंबल है, वो हमेशा कैपिटल लेटर में एक्सप्रेस किया जाता है। यहाँ पे कैंडेला जो है CD, इसलिए इसका जो सिंबल लिखते हैं कैपिटल C स्मॉल d लिखते हैं, क्योंकि कैंडेला इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट। ओके, so I hope students you all have understood these fundamental units of the fundamental quantities, right? So again मैं थोड़ा और दोहराता हूँ। Fundamental units are those units which are used to measure the fundamental quantity. There are 7 fundamental quantities: length, mass, time, electric current, temperature, amount of substance, and luminous intensity. So these are the
7 फंडामेंटल क्वांटिटी और उसके जो यूनिट यूज हम किया है दैट इज मीटर, किलोग्राम, सेकेंड, एम्पियर, केल्विन, मोल एंड कैंडेला, सब वो यूनिट। सो इसको लिख लो अच्छी तरह। Okay, now let's begin with derived units. Okay, derived units. It is same as that of the derived physical quantity. अभी derived physical quantity क्या होती है? The quantity which depends on two or more fundamental physical quantity. Similarly, derived units are those units which are derived from two or more fundamental units. दो या दो से ज्यादा फंडामेंटल यूनिट्स या दूसरे डिराइव्ड यूनिट से भी वो बनाया जाता है, इसलिए उसको कहते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। तो चलो पहले देखते हैं। अब इसमें रूल क्या है? डिराइव्ड यूनिट्स जब हम डिराइव करते हैं, जब बनाते हैं, तो उसके रूल्स क्या है? तो सबसे पहला जो पॉइंट है दैट इज वी मस्ट नो द फॉर्मूला। ओके, फॉर्मूला ऑफ डिराइव्ड क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। Second one is, then after writing the formula, then units, put SI units of each quantity. इसके बाद आता है सिंबल, आता है सिंबल। ओके, नाउ चलो पहले एग्जांपल लेते हैं। फर्स्ट एग्जांपल, if you take example of area, how we define the area? Area is, what is this? Area of this whiteboard. So area of whiteboard, area of the wall, area of window, right? Area of the flooring. How we derive the formula? How we calculate the area? Area can be defined, can be formulated, which is equal to length into breadth. Length multiplied by breadth. Right? अभी ये जो फॉर्मूला है इसको हम फंडामेंटल क्वांटिटी में लिखेंगे। तो लेंथ इज आल्सो फंडामेंटल क्वांटिटी मल्टीप्लाइड बाय, अब यहाँ पे जो ब्रेथ है, ब्रेथ इज नथिंग बट व्हाट? इट इज आल्सो वन ऑफ द लेंथ ओनली, बट शॉर्टेस्ट लेंथ होती है। अंडरस्टैंड? ब्रेथ इज आल्सो, उसका जो फंडामेंटल क्वांटिटी है ब्रेथ का, वो क्या होगा? लेंथ ही होगा। यहाँ पे भी लेंथ आएगा। सो विच इज L into L, so which is L square. Okay, या तो ऐसे रखो, this is L square. Now the length measured in, what is the SI unit of length? Meter. Into what is the SI unit of breadth or length? Is also meter. So which is meter square. So meter square is the derived unit for the quantity area. Understand? तो हमेशा जो एरिया होता है SI यूनिट में वो मीटर स्क्वायर में मेजर करते हैं। अगर CGS में लेना है, दिस इज SI यूनिट, अगर CGS में लेना है एरिया को तो कैसा आएगा बच्चों? इट इज सेंटीमीटर स्क्वायर। चलो अभी इसमें रिलेशन देखते हैं कि मीटर स्क्वायर और सेंटीमीटर स्क्वायर में क्या रिलेशन है। राइट, हमको पता है इफ यू टेक अ लेंथ 1 मीटर which is equal to 100 centimeter, 1 meter is equal to 100 centimeter, which is 10 raised to 2 centimeter. Now if you want to write meter square, 1 meter into 1 meter, that is 100 centimeter into 100 centimeter, which is 10 raised to 2 into 10 raised to 2, which is 10 raised to 4 centimeter square. This is what a relation between the area, which is 1 meter square. अब इसको उल्टा करते हैं
1 सेंटीमीटर स्क्वायर, यहाँ पे शायद नहीं आएगा, I will write here 1 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया इज इक्वल टू, अभी ये जो 10⁴ है वो इधर आ जाएगा लेफ्ट में, तो वो बन जाएगा डिवाइड 1/10⁴ मीटर स्क्वायर। कई बार एक क्वेश्चन कॉम्पिटेटिव एग्जाम में पूछा जाता है, एनटीएस में वगैरह, साइंस ओलंपियाड में, कि विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन इज करेक्ट, शो द रिलेशन बिटवीन मीटर स्क्वायर, सेंटीमीटर स्क्वायर और समटाइम मिलीमीटर स्क्वायर आल्सो, तो वो भी आपको आना चाहिए, राइट। तो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू, अभी ये 10⁴, इसको 10 के पावर में लिखना है, तो इट विल बी 10⁻⁻⁴। डिनोमिनेटर में 10⁴ है, तो ऊपर जाके क्या हो जाएगा 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर। This is what the relation between the area units centimeter square into meter square. Similarly, you can write in millimeter square also. Okay, so 1 centimeter is equal to 10 millimeter. So 1 meter square, 1 meter is equal to 1000 millimeter. So 1 meter square is equal to 1000 into 1000 millimeter square, which is 10⁶ millimeter square. Okay, शायद ये आएगा नहीं, I have to write this. So 1 centimeter is 10 millimeter. 1 meter is equal to 10 into 100, which is 1000 millimeter. So 1 meter square is equal to 1000 into 1000 millimeter square. So 1 meter square is equal to 10⁻³ into 10⁻³, which is 10⁶ millimeter square. So we can write the given area in millimeter square and meter square also, right? कि हम अब इसके प्रेफिक्स देखने वाले, सब मल्टीपल एंड मल्टीपल इलेक्ट्रॉन बाद में हम देखने वाले। तो ये होगा बच्चों द डिराइव्ड यूनिट ऑफ एरिया। ओके, चलो अभी नेक्स्ट क्वांटिटी देखिए, इसको कॉपी करो इस पर। ओके, अभी नेक्स्ट डिराइव्ड क्वांटिटी हम देखेंगे वॉल्यूम। Second derived quantity is volume. What is the volume? Volume is nothing but the space occupied by the substance, by the object. अभी ये क्लासरूम है, राइट, या ये जो रूम है, रूम के अंदर जो हवा है, what is the air is occupied, तो हम उसको बोलेंगे volume of the air contained in this classroom. Understand? उसको कैसे हम फाइंड करेंगे? If I want to calculate the volume of the air occupied in this room, that is the length of this room, breadth of this room and height of this room. ये जो height है, ये ऊपर क्या है, height है. Okay, so volume can be derived by using other fundamental physical quantity, right? So that is the length into breadth into height. After writing in the form of fundamental quantity, second step क्या है? To make the derived units, write the all fundamental quantity in their fundamental units. So length measured in meter, breadth also measured in meter and height also measured in meter. उसके बाद symbol meter cube. So small. So SI unit of or derived unit of volume is meter cube. इसका CGS यूनिट क्या आएगा बच्चों? The CGS unit of volume, CGS unit of volume will be centimeter cube, millimeter cube. Okay, millimeter cube भी यूज होता है, लेकिन बहुत स्मॉल क्वांटिटी. Okay, third unit is frequency. Frequency is what?
हम फ्रीक्वेंसी किसको बोलेंगे? दिन में कितने बार खाना खाते हैं? 3 बार खाना खाते हैं, ब्रेकफास्ट, लंच और डिनर। कोई कोई 4 बार भी खाता है, इवनिंग के टाइम में भी खाता है। तो उसको क्या बोलेंगे? नंबर ऑफ टाइम्स, हाउ मेनी नंबर ऑफ टाइम्स यू आर हैविंग अ फूड इन अ डे, दैट द फ्रीक्वेंसी। हाउ मेनी टाइम इट रिपीट्स, राइट? जैसे रिवोल्यूशन है, रोटेशन है, अभी ये फैन है, फैन घूम रहा है, उसकी फ्रीक्वेंसी हम निकाल सकते हैं कि कितने चक्कर लगाता है, हाउ मेनी टाइम इट रोटेट्स in 1 second. Understand? So number of times per second, that is the frequency. Okay, that is the frequency. So we can say frequency f, उसको दूसरा सिंबल है n, which is equal to 1 upon time period. Is the formula. अभी टाइम पीरियड है, हमें टाइम पीरियड क्या है? टाइम पीरियड इज द फंडामेंटल क्वांटिटी। फ्रीक्वेंसी क्या है? derived quantity which can be derived from any other fundamental physical quantity. Okay, तो टाइम पीरियड किसमें मेजर करते हैं? सेकेंड, 1 upon सेकेंड, और उसको दूसरा यूनिट क्या बोलेंगे? पर सेकेंड, पर सेकेंड। और दिस पर सेकेंड कैन आल्सो बी टेकन एज हर्ट्ज। जो हर्ट्ज साइंटिस्ट था उसके नाम पे उसको याद करने के लिए उसको यूनिट दिया गया है इंच। अब देखो यहाँ पे H, कैपिटल H यूज किया है, कैपिटल H यूज किया है, और यहाँ पे जो साइंटिस्ट का नाम है फुल फॉर्म अगर लिखना है तो स्मॉल लेटर से लिखना है, इट इज HZ और हर्ट्ज पर सेकेंड। दैट इज द derived यूनिट फॉर द derived फिजिकल क्वांटिटी। तो नेक्स्ट क्वांटिटी लेंगे हम लोग डेंसिटी। फोर्थ वन इज डेंसिटी। आजकल ये वर्ड बहुत यूज होता है, पॉपुलेशन डेंसिटी बोलते हैं, मास डेंसिटी बोलते हैं, वॉल्यूम डेंसिटी बोलते हैं, राइट? सो डेंसिटी इज द मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम, मास पर यूनिट वॉल्यूम। तो डेंसिटी का जो सिंबल है वो स्मॉल डी भी यूज करते हैं या रो भी यूज करते हैं, रो। द सिंबल फॉर डेंसिटी इज रो, व्हिच इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। So after writing the formula for derived quantity in terms of fundamental quantity and derived quantity, any other derived quantity, right? Density क्या है? derived quantity. Mass क्या है? fundamental quantity. Volume क्या है? derived quantity. तो यहाँ पे जरूरी नहीं कि दोनों फंडामेंटल ही होना चाहिए, एक फंडामेंटल हो सकती है, दूसरी derived हो सकती है। ओके, तो mass upon volume। अभी क्या लिखेंगे? We will write the SI unit of mass. What is the SI unit of mass? किलोग्राम डिवाइड बाय what is the SI unit of volume जो हमने ऊपर डिराइव किया? मीटर क्यूब, राइट? तो इसको नेगेटिव फॉर्म में लिख सकते हैं, kg डॉट मीटर क्यूब। सो दिस इज द derived unit of the density। चलो नेक्स्ट फिजिकल क्वांटिटी लेंगे हम लोग, स्पीड। दिस इज वेरी कॉमन वर्ड इन आवर डेली लाइफ। अरे उसका स्पीड इतना है, उसका स्पीड इतना है, ट्रेन का स्पीड इतना है, प्लेन का स्पीड इतना है, जो कार है, कार इज मूविंग एट अ सो एंड सो स्पीड, इतने स्पीड में गाड़ी चल रही है, राइट? तो स्पीड क्या होता है बच्चों? स्पीड इज ऑल्सो द derived quantity which is derived from distance upon time, which is derived from distance upon time, distance on time. So speed is the distance traveled by the body in a given time, that is called as speed. अब यहाँ पे distance क्या है? उसका जो fundamental quantity क्या होगा? Length. Distance measured in length. Okay, distance nothing but length upon time. लेकिन हम लेंथ किस में मेजर करते हैं? लेंथ मेजर इन मीटर, मीटर पर सेकेंड, विच इज मीटर पर सेकेंड।
ये जो माइनस साइन है, -1 कैसे आया, क्योंकि यहाँ पे सेकंड जो डिनोमिनेटर में, जब वो डिनोमिनेटर में होता है उसको जब ऊपर लेके आते हैं न्यूमरेटर में, तो हमको उसको नेगेटिव में लिखना पड़ता है। उसके बाद वेलोसिटी, वेलोसिटी का पहले हम उसका फॉर्मूला देखेंगे, रेट ऑफ चेंज ऑफ डिस्प्लेसमेंट, राइट, दैट इज डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम, इसमें आएगा। So I'll write velocity here. Velocity, displacement upon time, लेकिन हम डेली लाइफ में क्या करते हैं, स्पीड और वेलोसिटी दोनों को सेम ही लेते हैं, बट बोथ आर डिफरेंट इन द लैंग्वेज ऑफ फिजिक्स। स्पीड एंड वेलोसिटी बोथ आर डिफरेंट। स्पीड इज अ स्केलर, वेलोसिटी इज अ वेक्टर। तो ये जो स्केलर और वेक्टर है वो हम अगले टॉपिक में देखने वाले हैं। स्केलर क्या होता है, वेक्टर क्या होता है, विल स्टडी लेटर ऑन। सो व्हाट इज द यूनिट ऑफ डिस्प्लेसमेंट, मीटर, यूनिट ऑफ टाइम सेकेंड, so meter per second which is ms minus 1. नेक्स्ट क्वांटिटी है एक्सेलरेशन, पांचवा, छठा, सेवंथ एक्सेलरेशन। बच्चों एक्सेलरेशन क्या होता है, जब हम टू व्हीलर चलाते हैं, राइट, तो टू व्हीलर चलता है, हमारे राइट हैंड में क्या होता है, एक्सीलरेटर। व्हाट इज द पर्पस ऑफ दैट एक्सीलरेटर, एक्सीलरेटर टू चेंज इन वेलोसिटी, रेट ऑफ चेंज ऑफ वेलोसिटी। अगर मान लो इनिशियली हमारी जो स्कूटी है, जो बाइक है, वो 50 किलोमीटर पर आवर पे चल रही है, राइट, तो 50 किलोमीटर पर आवर चल रही है, तो उसको अगर हमने एक्सीलरेट किया तो इट विल चेंज 50, 60, 65 लाइक दैट। सो वेलोसिटी गोज ऑन चेंजिंग, राइट। सो एक्सीलरेशन इज change in velocity upon time. So change in velocity और velocity दोनों का सेम होगा, मीटर पर सेकेंड अपॉन सेकेंड which is meter per second square which is ms minus 2. So this is the derived unit for acceleration. The acceleration is change in velocity upon time, change in velocity measured in meter per second, time is second. तो ये दोनों कैंसिल नहीं होगा बच्चों, ये तो बच्चे क्या करते हैं, एस एस कट कर देते हैं, नो, एस और एस दोनों मल्टीप्लाइड होंगे मैथमेटिकली, तो क्या बनेगा, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। और लास्ट सेकेंड और दो क्वांटिटी हम लेते हैं, इसको लिख लो तब तक। ओके, नेक्स्ट डेराइव क्वांटिटी हम देखेंगे फोर्स। हाउ वी डिफाइन द फोर्स, फोर्स इज द फिजिकल क्वांटिटी which changes or tends to change the state of rest or state of uniform motion, राइट। जैसे मैंने अभी ये मार्कर लिया या डस्टर लिया, ये डस्टर लिया, तो ये डस्टर पे जब मैं फोर्स लगाऊंगा, अप्लाइंग द फोर्स, दैट डस्टर विल चेंज इट्स स्टेट ऑफ रेस्ट, ओके। तो फोर्स का फॉर्मूला हम पहले देखेंगे, फोर्स इज डिराइव्ड फ्रॉम द न्यूटन का सेकंड लॉ जो है, जो आप क्लास 9 में पढ़ोगे, राइट। फोर्स इज डिफाइंड एज द प्रोडक्ट ऑफ मास। अभी मास यहाँ पे क्या है, मास इज द फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी, मास इनटू एक्सीलरेशन। Always remember, whenever we are writing the derived units or derived quantity, you must know the formula in terms of fundamental physical quantity, okay। तो इसके बाद just substitute the unit of mass, mass measured in kilogram, into acceleration measured in, जो अभी अभी हमने यहाँ पे derive किया है, acceleration measured in meter per second square, यहाँ पे डालेंगे meter per second square, which is equal to kilogram meter per second, okay, which is also equal to Newton,
क्योंकि न्यूटन ने ये लॉ स्टेट किया था, डिफाइन किया था, इसलिए उसको न्यूटन, उसको याद करने के लिए उसको यूनिट दे दिया फोर्स को, तो न्यूटन विच इज इक्वल टू कैपिटल एन। ओके, देखो बच्चों, यहाँ पे जब भी आप साइंटिस्ट के नाम पे यूनिट लिखते हो तो जब उसको फुल फॉर्म में लिखते हो तो स्मॉल एन से स्टार्ट करना है, और जब उसको सिंबल फॉर्म में लिखना है, एब्रेटेड फॉर्म में लिखना है, तो हमेशा कैपिटल लेटर से ही करना है। क्यों कैपिटल? बिकॉज वो साइंटिस्ट का नाम है। अभी यहाँ पे जो किलोग्राम है, किलोग्राम हम कैपिटल की क्यों नहीं लेते? क्योंकि वो साइंटिस्ट का नाम नहीं है। इतना आपको याद रखना। ओके, उसके बाद आएगा पावर या प्रेशर लेते, प्रेशर, प्रेशर। तो प्रेशर क्या है? प्रेशर इज नथिंग बट द फोर्स एक्टिंग पर यूनिट एरिया, फोर्स पर यूनिट एरिया। अभी आप सोचोगे सर यहाँ पे तो दोनों डिराइव्ड क्वांटिटी, यस, कोई भी अगर थर्ड डिराइव्ड क्वांटिटी अगर बनानी है, इट कैन बी डिराइव्ड फ्रॉम टू और मोर डिराइव्ड क्वांटिटीज या टू और मोर फंडामेंटल फिजिकल क्वांटिटी। अभी यहाँ पे फोर्स क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी, एरिया क्या है? डिराइव्ड क्वांटिटी। दोनों का रेशियो लेके हमको क्या बनिए? थर्ड फिजिकल क्वांटिटी, डिराइव्ड क्वांटिटी। जरूरी है कि यहाँ पे पहले एक फंडामेंटल ही होनी चाहिए, बट दिस फोर्स कैन बी रिटन इन टर्म्स ऑफ फंडामेंटल क्वांटिटी। तो फंडामेंटल के फॉर्म में लिखते हैं, तो मास इनटू एक्सेलरेशन अपॉन एरिया क्या आएगा? लेंथ इनटू ब्रेथ। वापस एक्सेलरेशन को भी लिख सकते हैं, वेलोसिटी अपॉन टाइम, मास into velocity upon time upon length into breadth area। देखो आ गए, we have written all the derived quantity in terms of fundamental physical quantity। अभी क्या करो? just write the units, mass measured in kg, velocity measured in meter per second, divide by time measured in second, divide by L into P, length measured in meter, breadth is measured in meter, meter into meter, which is किलोग्राम मीटर। अब ये क्या हो जाएगा? -2 डिवाइड बाय मीटर स्क्वायर, which is equal to न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब यहाँ पे मैंने कट भी कर सकता हूँ, यहाँ पे एक ये मास और ये मास कट कर सकता हूँ, लेकिन मुझे पता है किलोग्राम मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नथिंग बट न्यूटन विच इज द एसआई यूनिट ऑफ फोर्स, और मीटर स्क्वायर, राइट। तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, उसको दूसरा नाम है पास्कल, विच इज इक्वल टू कैपिटल पी। ओके, तो यहाँ पे पास्कल जो है, पास्कल टू बी रिटन लाइक दिस, पास्कल इज द नेम ऑफ साइंटिस्ट, इसलिए प्रेशर को जो यूनिट दिया गया है वो पास्कल दिया गया है। ओके, अब रेगुलेशन क्या है? 1 पास्कल इज इक्वल टू 10⁵ न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, दिस इज व्हाट द रिलेशन बिटवीन प्रेशर, 1 पास्कल है न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ओके, तो आज बस इतना ही। इन द नेक्स्ट क्लास वी विल स्टडी द एसआई प्रीफिक्स एंड इन अदर टर्म्स। ओके, चलो, हैव अ गुड डे, बाय बाय, सी यू।